Hello and welcome to our page Guru Dot. In this video, we are going to cover question and answers and the grammar section of Class 4 English Unit 1 Chapter 1 Wake Up written by C. Fletcher. मैं दोबारा बता रही हूँ, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं question and answers and the grammar section in the NCERT Class 4 English Unit 1 Chapter 1 Wake Up written by C. Fletcher. तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 4 NCERT मैरीगोल्ड इंग्लिश क्लास 4 रीडिंग इस फन वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1, What do you think birds say to each other in the morning? I'm repeating the question. What do you think birds say to each other in the morning? इसका मतलब है कि आप क्या सोचते हो कि पक्षियाँ सुबह सुबह एक दूसरे को क्या कहते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, इसका मतलब है कि आप क्या सोचते हो कि पक्षियाँ एक दूसरे को सुबह सुबह क्या कहते हैं। आंसर, आई थिंक bird wish good morning to each other in the morning. इसका मतलब है कि पक्षियाँ एक दूसरे को सुप्रभात कहते हैं जब वो सुबह सुबह एक दूसरे से मिलते हैं। I'm repeating my answer. I think bird wish good morning to each other when they meet each other in the morning, or I think bird wish good morning to each other in the morning. Let's move to the next question. Who are already awake? इसका मतलब है कौन अभी तक जग चुके हैं। I'm repeating the question. Who are already awake? Answer, birds, bees, cows, horses, ducks, sheep and the tiniest chicken are already wake up. मतलब birds का मतलब पक्षियाँ, bees मतलब मधुमक्खियाँ, cows मतलब गाय, horses मतलब घोड़ा, ducks मतलब बतख, sheep मतलब भेड़ and the tiniest chicken मतलब जो छोटे छोटे चूजे हैं वह अभी जग चुके हैं। I'm repeating the answer. Birds, bees, cows, horse, ducks, sheep and the tiniest chicken are already awake. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which creature wake up in the morning before the child does? The meaning of this question is कि वो कौन से प्राणी हैं जो बच्चे के जगने से पहले ही जग चुके हैं। I'm repeating the question once again. Which creature wake up in the morning before the child does? Answer, the cow, horses, ducks, sheep, bees, birds and the tiniest chicken wake up in the morning before the child does. मतलब the cows मतलब गाय, horses मतलब घोड़ा, ducks मतलब बतख, sheep मतलब भेड़, bees मतलब मधुमक्खियाँ, birds मतलब पक्षियाँ and the tiniest chicken मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे वह सुबह जग चुके हैं बच्चे के जगने से पहले। I'm repeating the answer. The cow, horses, ducks, sheep, bees, birds and the tiniest chicken wake up in the morning before the child does. Let's move to the next question, that is page number 4. Let's listen section. Question number 1. Listen to the songs of birds. Say the word boy and bees. Listen to the word bee in the sound. In, big, bubbles, bean,
bag, blue, blow and black। इस क्वेश्चन का मतलब है जो पक्षियों का गाना होता है उसे आप सुनिए और बॉय एंड बी वाले वर्ड को आप एक बार जोर से बोलिए, फिर उसमें जो साउंड बी आता है, जो बी लेटर से शुरू होते हैं दोनों वर्ड बॉय एंड बी साउंड को गौर से सुनिए। इन दी वर्ड, जो इन वर्ड्स में जो बी साउंड है उसको आप गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। तो एक बार चलिए रिसाइट कर लेते हैं। बिग, बीन, ब्लू, ब्लैक, bubbles, back and blow। Let's move to the next question. Question number 2. Let's listen portion. Listen to the baby chicks. Chip, chip, chip। आप जो चूजे होते हैं, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, वो जब चिप 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 करते हैं उस साउंड को गौर से सुनिए। सो एक बार प्रोनाउंस कर लेते हैं। चिप चिप चिप। I'm repeating, chip, chip, chip। So, let's move to the next question, that is page number 4. Let's listen and talk section, question number 1. Page number 4, let's listen and talk section, question number 1. Go for a morning walk. Listen to the sound you hear, like the rustling of leaves, the wind blowing, the chirping of birds and the sound of footsteps। मतलब आप जब सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ साउंड्स, कुछ शब्द, कुछ आवाज सुनाई देते हैं, उसे गौर से सुनिए। कुछ साउंड्स जैसे कि रस्टिंग ऑफ लीव्स, विंड ब्लोइंग, जब हवा बहती है एक साउंड होता है, उस साउंड को सुनिए। द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, जब पक्षियाँ एक दूसरे से बात करते हैं, जो आवाज निकलते हैं उसे चर्पिंग ऑफ बर्ड्स कहते हैं। एंड द साउंड ऑफ फुटस्टेप। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, लिसन टू द साउंड यू हियर, लाइक द रस्टिंग ऑफ लीव्स, द विंड ब्लोइंग, द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, the sound of footsteps। Answer. Students are advised to write the answer based on their own experience and observation। मतलब ये आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप अपने जो एक्सपीरियंस है, जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है और आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आप जो जो देखते हैं उसे आप अपने शब्दों में लिखिए। Let's move to the next question. Question number 2. Let's listen and talk section. Imagine that a cow, a horse, a duck and a chicken are meeting in the morning meal. What would they say to one another? I'm repeating the question. Imagine that a cow, horse, duck, a chicken are meeting for a morning meal. What would they say to one another? Let's see the answer. Cow. Hi horse, how are you? Aren't you feeling hungry? तो गाय घोड़े से कहता है कि तुम कैसे हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है? Horse. Hey cow, yes, I am feeling hungry. I want to eat barley and grains in my meal। तो घोड़ा गाय को जवाब देते हुए कहता है कि हे cow, हाँ मुझे भूख लग रही है और मुझे बार्ले और ग्रेन्स चाहिए मेरे मील में, मतलब मेरे खाने में मुझे बार्ले और ग्रेन्स चाहिए। Duck. I'm not feeling hungry. I had ate a small fish in my breakfast। So, duck बोलता है, बतख कहता है कि मुझे भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, मैंने सुबह ही एक छोटी सी मछली खाई है अपने नाश्ते में। Chicken. Yuck! I don't like eating fish।
It is so bad in taste. Dear ducky, can you please cook me a fresh earthworm for me? चिकन डक को रिप्लाई देते हुए कहता है, यक, मुझे फिश खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है। टेस्ट मतलब स्वाद। इसका स्वाद बहुत ही गंदा होता है। डियर डकी, कैन यू प्लीज कुक अ फ्रेश earthworm फॉर मी? तो चिकन डक को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, डियर डकी, क्या तुम कृपया करके मेरे लिए एक फ्रेश earthworm बना दोगे? डक चिकन को रिप्लाई देते हुए कहता है, श्योर, आई विल कुक फॉर यू। डक चिकन को रिप्लाई देता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए जरूर बना दूंगा। सो लेट्स रिसाइट वंस अगेन। काउ, हाय हॉर्स, हाउ आर यू? Aren't you feeling hungry yet? Horse, hey cow, yes, I'm feeling hungry. I want to eat barley and grains in the meal. Duck, I'm not feeling hungry. I had ate a small fish in my breakfast. Chicken, yuck, I don't like eating fish. It is so bad in taste. Dear ducky, can you please cook a fresh earthworm for me? Duck, sure, I will cook for you. Let's move to the next question. Next question is in page number 4, say loud section, question number 1. Let's recite. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better. So basically it's a tongue twister. I'm reciting once again. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better. So इसमें आपको क्या करना है, ये जो फ्रेज है, ये जो स्टिंजा है, इसको आपको रिपीटेडली बोलना है। टंग ट्विस्टर के तौर पे इसको आपको रिपीटेडली बोलना है। सो ये आप खुद ही ट्राई कर लीजिए। प्लीज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 5, NCERT मैरीगोल्ड बुक। लेट्स राइट। बेसिकली दिस इज द ग्रामर सेक्शन। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। Question number 1. Connect the pair of the sentence given below using and or but. So यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको ये जो दो वर्ड है and but, ये दो यूज करके कनेक्ट करने हैं। So connectors और conjunction, जो and but है, they are connectors or we can say conjunction. So what is connector and conjunction? Connector or conjunctions are words that link other words, phrase or clause together. So conjunction वैसे words होते हैं जो दो सेंटेंस को दो सेंटेंस या फिर फ्रेज या फिर आप क्लॉज कह सकते हो, उसको एक साथ जुड़ते हैं। The most common coordinating conjunction are for, and, nor, but, or, yet, and so. So most common coordinating conjunction क्या है? For, and, not, but, or, yet, and so. चलिए अब आते हैं कि हम and का यूज कब करेंगे और but का यूज कब करेंगे। We use and जब हम किसी सेंटेंस में एक सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। जब किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम ऐड करते हैं दो सेंटेंस के बीच में, हम वहाँ पे एंड यूज करते हैं। एंड बट जब हम कंट्रास्ट शो करते हैं दो सेंटेंस के बीच में, तब हम बट शो करते हैं, बट लिखते हैं। जब हम कंट्रास्ट शो करते हैं तब हम उन दो सेंटेंस के बीच में बट वर्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। Question 1. It is time to get up for school. I want to sleep for some more time. So पहला सेंटेंस क्या है?
इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। अभी ये टाइम हो चुका है कि अब उठ जाए और स्कूल के लिए तैयार हो जाए। और नेक्स्ट सेंटेंस में ये है आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। मुझे अभी और कुछ देर के लिए सोना है। सो एज वी कैन से बोथ द सेंटेंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। हमें उठना भी है बट हमें सोना भी है। तो यहाँ पे कंट्रास्ट शो हो रहा है। तो कंट्रास्ट शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बट का प्रयोग करते हैं। सो द आंसर इज इट इज द टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। मतलब ये स्कूल के लिए उठने का समय हो चुका है मगर मुझे अभी और कुछ देर के लिए सोना है। आई एम रिपीटिंग द आंसर। It is time to get up for school, but I want to sleep for some more time. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Sheila got some chocolates for her birthday, and the second sentence is she got some new clothes too. तो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब क्या है, शीला को अपने बर्थडे के लिए कुछ चॉकलेट्स मिले हैं। That is, Sheila got some chocolates for her birthday. Next sentence है she got some new clothes too. और उसको नए कपड़े भी मिले हैं। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन इंटरलिंक है। और हम अगर ऊपर वाले के साथ क्लॉथ्स को ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड होता है। जब हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं हम एंड का यूज करते हैं। सो द आंसर इज शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड शी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू। सो द आंसर है कि शीला को कुछ चॉकलेट्स मिले हैं अपने बर्थडे के लिए और साथ ही में उसको कुछ कपड़े भी मिले हैं। आई एम रिपीटिंग द आंसर अगेन। Sheila got some chocolates for her birthday and she got some new clothes too. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, everyone has gone to sleep. Everyone has gone to sleep. सभी सोने चले गए हैं। I want to read my book. मुझे अपना बुक पढ़ना है। मुझे अपना बुक मतलब किताब पढ़ना है। सो हियर सभी सोने चले गए हैं मगर मुझे अपना बुक पढ़ना है। यहाँ पे फिर से कंट्रास्ट शो हो रहा है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम बट का प्रयोग करेंगे। सो द आंसर इज एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। सभी सोने जा चुके हैं मगर मुझे अपना किताब पढ़ना है। आई एम रिपीटिंग द आंसर। एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू प्लेज क्रिकेट। मतलब राजू क्रिकेट खेलता है एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि वो हॉकी भी खेलता है। सो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन ऐड हो रहे हैं। राजू क्रिकेट भी खेलता है और राजू हॉकी भी खेलता है। सो व्हेन वी ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वी यूज एंड। सो द आंसर इज राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी। राजू क्रिकेट भी खेलता है एंड हॉकी भी खेलता है। आई एम रिपीटिंग माई आंसर। राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर 5, लेट्स राइट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks according to the example given below. Fill in the blanks according to the example given below. Tiny, tinier, tiniest. जो कुछ यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स देंगे हमें, उसे हमें फिल करना है इस एग्जाम्पल को देख के। टाइनी, टाइनियर, टाइनिएस्ट।
बेसिकली हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करना है। तो चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन are used to compare one thing with another. So degree of comparison use इसलिए किया जाता है जब हम किसी एक चीज को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं? पॉजिटिव डिग्री is used when we speak about only one person or one thing. हम पॉजिटिव डिग्री कब यूज करते हैं? जब हम किसी एक इंसान या फिर एक ही चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, इट इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन और टू थिंग्स। जब हम दो पर्सन या फिर दो चीजों के बारे में कंपेयर करते हैं, दो चीजों को कंपेयर करते हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, superlative degree is used when we compare more than two things with one another. तो superlative degree का यूज हम तब करते हैं जब हम दो से अधिक चीजों को कंपेयर करते हैं। तो दो से जब अधिक हम चीजों को कंपेयर करते हैं, हम superlative degree का यूज करते हैं। I am repeating, degree of comparison are used to compare one thing with another. Positive degree is used when we speak about only one person or one thing. Comparative degree is used when we compare two person or two things. Superlative degree is used when we compare more than two things with one another. चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पेज नंबर 5 पे। टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट। टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट ऑलरेडी आपकी किताब में ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं। सो हम नेक्स्ट देखते हैं बिग। सो पॉजिटिव डिग्री बिग, बिग का कंपैरेटिव डिग्री इज बिगर। पॉजिटिव डिग्री के साथ ER लगा दीजिए, कंपैरेटिव डिग्री बिगर बनेगा। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बिग इज बिगेस्ट। थर्ड, स्लिपी, स्लिपियर, slippiest. Slippy is in positive degree, slippier is in comparative degree, and slippiest is in superlative degree. Lovely, lovelier, loveliest. यहाँ पे lovely is in positive degree, lovelier is comparative degree, and loveliest is in superlative degree. Late, later, and latest. Late is in positive degree, later is in comparative degree, latest is in superlative degree. Next, round, rounder, roundest. Round is in positive degree, rounder is in comparative degree, roundest is in superlative degree. Small, smaller, smallest. Small is in positive degree, smaller is in comparative degree, and smallest is in superlative degree. Good, better, best. Good is in positive degree, better is in comparative degree, and best is in superlative degree. एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट। बिग, bigger, biggest. Sleepy, sleeper, sleepest. Lovely, lovelier, loveliest. Late, later, latest. Round, rounder, roundest. Small, smaller, smallest. Good, better, best. चलिए देख लेते हैं अब कुछ एग्जाम्पल्स। Some examples of sentence using degree of comparison. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिसमें हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करेंगे। मिली इज गुड इन स्टडीज, सो गुड इज इन पॉजिटिव डिग्री। मिली इज गुड इन स्टडीज मतलब मिली पढ़ाई में अच्छी है। गीता इज बेटर
student than Sunita. मतलब गीता सुनीता से बेटर है. This is in comparative degree. Geeta is a better student than Sunita. Next, Rana is the best student in his class. This is in superlative degree. Best superlative degree है. राना एक लड़का है जो अपने क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है. राना इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास. नेक्स्ट सेंटेंस इज चंडीगढ़ इज अ बिग सिटी. चंडीगढ़ इज अ बिग सिटी. दिस इज बिग इज अनदर पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट, मुंबई इज अ बिगर सिटी than Chandigarh. Here we are using comparative degree bigger. मुंबई is bigger city than Chandigarh. हम मुंबई और चंडीगढ़ में कंपैरिजन कर रहे हैं with the word bigger. Next, कोलकाता is the biggest city in India. कोलकाता is the biggest city. कोलकाता is the biggest city in India. कोलकाता इंडिया का सबसे बड़ा शहर है. चलिए आज के लिए इतना ही. शुक्रिया. थैंक यू.